Welcome to Meet Kalakar. Meet Kalakar Gurukul is an online school of performing arts. Here we teach various forms like vocal, dance forms like Kathak, Bharatnatyam, and various instruments like harmonium, tabla, sitar, flute, etc. More than 100 teachers teach in Meet Kalakar, and we have more than 500 students across the globe. Namaskar, everybody. This is Namaskar, Richa namaskar. from Meet Kalakar, and I welcome you all to Student Spotlight. स्टूडेंट स्पॉटलाइट जैसे आप जानते हैं कि मीट कलाकार के जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कथक या मेनी अदर डांस फॉर्म्स है या क्लासिकल वोकल लाइट वोकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम सिखाते हैं तो वो सीखते हैं और जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं बहुत सालों से सीखते हैं और मन लगा के सीखते हैं तो उनसे हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पॉटलाइट में। तो आज की हमारी जो स्टूडेंट है शी इज वेरी स्पेशल। शी हैज बीन एसोसिएटेड विद मीट कलाकार फॉर मोर देन 4 years नाउ। सो आई वेलकम सोनल जी, सोनल बोरास्ते फ्रॉम यूएसए। वेलकम सोनल जी। Thank you, Richa ma'am, and thank you, Mit Kalakar, for arranging this interview. And I'm really glad that you made effort to talk to your students. And also, I'm really glad I've been learning light vocals and Kathak from Mit Kalakar with wonderful teachers, of course. And thank you for having me. It's been quite a journey. I started with the light vocals, and I really enjoyed my sessions with Madhura ma'am. And I, of course, started where I had no experience at all. But राइट। each session I got better, and of course, उनके साथ मुझे काफी मजा आता था क्योंकि हर हर सेशन में नया गाना, हर सेशन में वो गाने को तोड़ के कैसे अच्छे से गा सकते हैं वो उन्होंने हर सेशन में काफी अच्छे से बताया। सो इट वाज गुड like taking lessons with her and of course through Meet Kalakar. So I'm really glad. या वंडरफुल। सो फर्स्ट टेल मी अबाउट बैकग्राउंड आपकी, आप कहाँ से है, वेयर डू यू हेल फ्रॉम? सो बैकग्राउंड ऐसे आई एम फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। वहाँ मैं एक मतलब गांव से हूँ। सो ओवर देयर आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनी क्लासेस और एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो जब मैं लाइक बड़ी हुई देन आई स्टार्टेड pursuing my hobbies, right? One of them is singing. राइट। तो जब मुझे मैं जॉब करना शुरू हुई तो मुझे मिट कलाकार के बारे में पता चला एंड देन I reached out to Meet Kalakar and asked them like I want to start my singing journey, and then they helped me and also asked me what are my requirements, and also they uh, found a teacher that matches my like singing style and also the everything that I wanted to know. So that's how I started. But yeah, initially I didn't have any access to any classes. That's why, like, when I got like independence and I would say like access to the different classes, that's when I found Meet Kalakar. एक्चुअली दर्शकों, एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, इट इज वेरी नोटेबल दैट सोनल जी हु यू नो हेल्स फ्रॉम अ विलेज नियर नासिक, from Yeah. there she is now in USA, and along with her profession she is also learning music. Now I think you had learned music for around 3 to 4 years, and now you have started your journey as a Kathak student, Oh, definitely. right? Yeah, I think I transitioned like from singing to my dancing. Of course, I still like to sing. I'm not.
taking sessions with Madhura ma'am now in that much, but definitely I enjoy my singing sessions with Meet Kalakar, and then I transition from singing to dancing. I still pursue my singing. I do have a karaoke group that I go every month and sing there with different songs with different themes. So my singing journey with Meet Kalakar definitely helped to that. So I am enjoying my karaoke sessions with my karaoke group. And then now I wanted to get certified with the Kathak. I had done Kathak for a couple years before joining Meet Kalakar, so I'm just like restarting my Kathak journey with Meet Kalakar now. Like this year, my goal is to complete my first exam, and then of of course to finish it properly. I don't want to like give up Right. this time. Right. No, Yeah. we know that you are a sincere and a dedicated student because classical vocal, light vocal आपने इतने साल सीखा है regularly. So हाँ, I'm sure even Kathak you will, learn it the same way. यस डेफिनेटली होपफुली ऑफ कोर्स टीचर्स भी हमें पुश करते हैं कि जब लाइट वोकल करती थी तभी भी मधुरा मैम मुझे बोलती थी कि ये आपके रेंज में नहीं है, बट आप ट्राई करो। मेरा रेंज हमेशा डी रहता था, या फिर एफ डी शार्प रहता था, बट मधुरा मैम बोलती थी आप ट्राई करते रहो, आप रियाज करते रहो तो आपको वैसे ही आपकी रेंज बढ़ेगी, रेंज ऐसे ही नहीं एक दिन में बढ़ेगी। तो हमने Right. ऐसे भी सॉन्ग किए थे जब मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता था, बट देन एट द एंड ऑफ द सेशंस आई वुड बी फील कंफर्टेबल। तो उन्होंने मुझे काफी पुश किया था कि आपकी रेंज नहीं, Right. बट तो ट्राई टीचर करते पर भी बहुत सारा निर्भर है एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली अगर क्योंकि टीचर को पता चलता है आई थिंक स्टूडेंट से भी ज्यादा। जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बट उनको पता था कि शायद मैं कर पाऊंगी, तो वो हमेशा मुझे पुश करते थे कि नहीं आप कर पाओगे, आप ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। तो उनके या साथ फिर ऐसे ही मेरी रेंज धीरे धीरे बढ़ी। बट हाँ, ऐसे अलग अलग गाने भी हम पिक करते थे, वो कभी वो पिक करते थे, तो मजा आता था। राइट। एंड Yes. व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली सोनल जी? Professionally, I am a software developer, and like my 9 to 5 job, you would say I am a software developer, and then after that, I try to pursue my hobbies. Either before or after, I have 3-year-old daughter too. So in between, whenever I get time, I just try to like take a break and just do some riyas a little bit. Not if I don't get time at home while going to the job in car, I just do my सारेगामा प, और फिर वंडरफुल। जितना हो सके उतना, नहीं नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आई कीप सिंगिंग जितना, लाइक कोई गाना मुझे नया अच्छा लगा है तो फिर मैं वो गाना सुनते सुनते फिर आई जस्ट सिंग अलोंग, और कभी कभी खुद से भी गाती हूँ। तो मेरे मेरे घर में मुझे रेडियो बोला जाता है क्योंकि मैं पूरा टाइम गाना ही गाते रहती हूँ। तो पहले और मेरी, सुरीला भी होता है क्योंकि रेडियो पे हमेशा सुरीले गाने होते हैं। हाँ वो भी है, बट हाँ मेरे घर में बोलते कि तू कभी शांत नहीं बैठते, आइदर आई वुड हम, आई वुड सिंग, ऐसे ही रहेगा। और कभी गलती से मुझे मिरर दिख गया तो मिरर के सामने डांस करना शुरू हो जाती हूँ तो मेरे घर वेरी में मुझे नाइस। रेडियो बोला जाता है क्योंकि गाना कभी बंद ही नहीं होता है। वेरी नाइस। सो एक्चुअली आई विल से कि आपने अभी इतने साल पहले लाइट म्यूजिक सीखा, तो आपके क्लासेस एक्चुअली कैसे होते थे? मतलब ऐसे कुछ ये था कि शुरू में कुछ पहले प्रैक्टिस होती है, बाद में नया सिखाते हैं, तो हाउ वुड योर सेशंस हैपन? सेशंस वर लाइक इनिशियली ऑफ कोर्स थोड़ा ग्रेजुअली शुरू हुआ, क्योंकि मधुरा मैम को भी मेरी रेंज पता नहीं थी, और मुझे भी ऑफ कोर्स लाइट वोकल में मुझे क्लासिकल नहीं करना था, क्योंकि क्लासिकल में थोड़ा डेडिकेशन ज्यादा चाहिए जो मेरे पास तब नहीं था। तो उस तरह से धीरे धीरे शुरू किया। सेशंस ऐसे थे कि थोड़ा रियाज करते थे, स्टार्टिंग में रियाज होने के बाद फिर हम जो भी गाना वो सेशन के लिए पिक किया है वो गाने का मुखड़ा से शुरुआत करते थे। कभी
अगर मुखड़ा शुरू खत्म हो गया तो अगले सेशन में शायद अंतरा कोशिश करते थे। बट हमेशा सेशन शुरू होने से पहले रियाज, फिर गाना शुरू करते थे। कभी मधुरा मैम गा के दिखाते थे, कभी मैं गाती थी। तो ऐसे और वो करेक्ट भी करते थे, वो गाना ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे पूरा गाना एक दो तीन सेशन में पूरा कंप्लीट करते थे। और वो गाने के हिसाब से भी रियाज करते थे। कभी कभी सेम रियाज नहीं हम्म। लगता है, हर गाने के लिए थोड़ा रियाज अलग भी चाहिए, तो रेंज करेक्ट। भी डिफरेंट होती है। तो उस तरह से भी वो रियाज भी अलग होता था। बट धीरे हमेशा सेशन रियाज से शुरू, और फिर गाना जितना सीखा है उतना पूरा कंप्लीट करते थे। और फिर करेक्ट। धीरे धीरे हर एक सेशन में स्टार्टिंग में हम कोई म्यूजिक के साथ नहीं गाते थे, सिर्फ तानपुरा लगता था, और जो रेंज का वो गाना है वो तानपुरा वहां बजता था, और उसी के हिसाब से गाना गाते थे। और फिर बाद में धीरे धीरे मैंने भी बोला कि मुझे म्यूजिक के साथ गाना गाना है। तो हम कभी यूट्यूब पे वो उसका कैरियोकी ढूंढते थे, फिर उस हिसाब से ओके। वो तानपुरा के बाद फिर कैरियोके पे गाना गाते थे। तो उस तरह से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आई कैन सिंग विद द कैरियोकी और विद द म्यूजिक। तानपुर तानपुरे पे गाना थोड़ा डिफरेंट होता है देन द कैरियोकी, बिकॉज यू हैव टू कीप गोइंग, यू कैनॉट टेक पॉज, करेक्ट। करेक्ट। you have to follow या the music. It's इट not, it डजंट will वेट not, फॉर यू। yes, it will push you to just remember the song and just go with it, ऐसे। बट या ऐसे हर एक सेशन गाने के हिसाब से अलग भी होता था, बट शुरू हम रियाज से ही करते थे। Okay. And when you started and after learning for around 4 years, so what difference do you feel आप में क्या बदलाव आया है? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं हाई रेंज के गाने नहीं गा सकती थी, राइट। तो वो मेरा गलतफहमी काफी दूर हुआ। अ, उस हिसाब से मुझे पता चला कि हर हर एक इंसान का एक रेंज होता है, बट कोई भी हायर रेंज गाना है तो मैं डर जाती थी। अभी मैं डरती नहीं हूँ। अभी मुझे बोला कि अच्छा चलो, ये श्रेया घोषाल का गाना है, आप गा लो, तो मैं मुझे टेंशन नहीं आएगा, या फिर मैं सोचूंगी नहीं, या फिर लता जी का गाना है, तो वो रेंज कभी मैं सोच नहीं पाती थी। सुना तो सुनिधि का है तो मैं शायद गा लूं, बट श्रेया घोषाल या फिर लता जी, उनका कोई गाना है तो पहले डर लगता था, अभी डर नहीं लगता है। अभी ठीक है, मुझे ये गाना अच्छा लगा है, मुझे गाना है। तो उस हिसाब वंडरफुल। से यस, तो धीरे धीरे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, जो मुझे मधुरा मैम के सेशंस के बाद काफी आया। उन ओके। हाँ, दैट रियली हेल्प फॉर मी, क्योंकि मेरा रेंज भी बढ़ा, एंड उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस भी काफी आया। यस। ओके। और ऐसे कोई गाने आपको याद हो जो यू लाइक्ड वेरी मच एंड यू कुड सिंग एंड यू लर्न दोस सॉन्ग? काफी ऐसे काफी सॉन्ग्स थे, अभी ऑन टॉप ऑफ माय हेड आई कैन जस्ट लाइक ये इश्क है, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ, ये गाना मुझे लगता था मैं गा नहीं पाऊँ, क्योंकि उसका भी रेंज हाई कम ज्यादा होता है, राइट, बीच में। हम्म। तो ये गाना, या फिर दिल ये छोटा सा छोटी सी आशा, ये गाना, ऐसे काफी गाने जो मुझे पसंद थे बट मैं गा नहीं पाती थी। और मैं या फिर गूंज सा है कोई एक तारा हम्म। गूंज सा है कोई, ये रेंज लो है, बट जो गाने हाई रेंज है वो मुझे बाद में कॉन्फिडेंस आया, और फिर आई आई स्टार्टेड लर्निंग दो सॉन्ग विद मधुरा ना। सो ऐसे ओके। लोअर रेंज के गाने हमेशा गाती थी मैं, बट हायर रेंज के गाने जो मुझे गाने थे, और जो बाद में विद ओवर द सेशंस आई रियलाइज आई कैन सॉन्ग दो। बट ऑफ कोर्स अभी सुबह है तो ओके। मेरा रेंज वैसे भी ज्यादा हाई नहीं है, बट राइट। या राइट। एंड अभी इतने साल आपने गाना सीखा, तो व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट, आपको कैसे लगा कि कथक अभी सीखना चाहिए? हाँ, थोड़ा बैक स्टोरी देती हूँ उसमें, क्योंकि मैं कथक जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने किया था, बट विद जॉब एंड एवरीथिंग आई फॉरगॉट दैट आई वाज डूइंग दैट। फिर बाद में अभी मेरे यहाँ पे मैं फ्रेंड्स में मैं बच्चों को सिखाती हूँ,
फॉर दिवाली फंक्शंस या फिर उनके स्कूल के फंक्शंस। और फिर ऐसे ही सबने बोला कि अरे तू डांस अच्छा कर लेती, तू सिखाती क्यों नहीं है? तो मैंने बोला हाँ वो बात भी है, मेरे घर में सबको पता है कि अरे तू इतना अच्छा करती है, तू एटलीस्ट तू सिखा थोड़ा सा। तो आउट ऑफ दैट एवरीबडी पुश्ड मी, फ्रेंड्स फैमिली, कि तू थोड़ा सा हम्म। सिखाना शुरू कर। अभी मैं बॉलीवुड डांस एंड ऐसे सेशंस लेती हूँ, डांस सिखाती हूँ बच्चों के लिए। So then I was like, having a certification would help for me over the years. Of course, that this is my hobby, and I want to pursue that hobby to. So मुझे certification या फिर थोड़ा कथक, anyhow I love कथक, classical and semi classical. तो उस तरह से as a teacher I would have some certification to show, or the credibility that my students would look after, that teacher has this certification, right? राइट, Right now राइट। of course I am not like teaching kathak, I'm because I'm still learning, but I'm teaching students जो उनको सीखना है, या फिर कोई नया सॉन्ग जो उनके पेरेंट्स को सीखना है उनके बच्चों के लिए। तो मतलब 8 to 12 years के जो बच्चे जो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं उनको सिखाती हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा फन वाले सॉन्ग सिखाती हूँ, या फिर ऐसे बम बम बोले टाइप। या फिर बड़े हाँ, हाँ। बच्चे हैं तो उनको कभी सेमी क्लासिकल सीखना है तो उस तरह से ओरेपिया, या फिर जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं। यहाँ पे जनरली बच्चों को इंडियन कल्चर के साथ इंटैक्ट रखने के लिए थोड़ा हम्म। पेरेंट्स पुश करते हैं कि तुम राइट। डांस सीखो या फिर क्लासिकल डांस सीखो, इंडियन स्पेशली। तो उस तरह से अभी मैं हमारे नजदीक यहाँ पे एक डांस स्टूडियो है, वहां पे मैं सिखाती हूँ। सो दैट्स ओके। या क्योंकि ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही कि कोई भी टीचर हो तो क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। क्योंकि हमारे यहाँ भी मीट कलाकार में जो टीचर्स है दे आर मिनिमम विशारद लेवल के तो है ही वो। जी एंड बरोबर। दे हैव बीन टीचिंग एंड परफॉर्मिंग फॉर सो मेनी इयर्स। यस यस। तो वो बहुत ये है कि तो वो बाकी स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे अगर वो खुद अच्छे सीखे हैं तो। जी, वो बात तो बराबर है। इसलिए मुझे टीचर्स के लिए, क्योंकि अब मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट भी है। वो पहले भी था, बट अभी मुझे पता है कि टीचर का जो डेडिकेशन है वो कितना जरूरी है। तो टीचर का डेडिकेशन रहा तो स्टूडेंट का डेडिकेशन रहेगा, नहीं तो फिर वो बीच में स्टूडेंट का इंटरेस्ट मिस हो जाएगा, अगर फोकस नहीं रहा तो वो बात तो सही है। एंड इट इज अ टू वे थिंग, टू क्योंकि वे अगर थिंग। स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं है तो टीचर का भी इंटरेस्ट चला जाता है। जी, आई वो तो डेफिनेटली है। लाइक टू आस्क यू, स्पेशली कि आप अभी इतने साल से सीख रहे हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपके ये हॉबीज, सो हाउ डिड यू ट्राई एंड बैलेंस दोज, स्पेशली नाउ Of विद द किड दैट यू हैव? with the kid, definitely it's difficult. I did take a break from singing and dancing when I was pregnant, and not pregnant, I would say I delivered my baby, and after that I took a break of 1.5 year until like that I was learning. And after now my daughter got like 2 years old, I started pursuing that hobby again. बट डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है क्योंकि दिन में टाइम नहीं होता है, तो मैं जल्दी उठ के अभी मेरे क्लासेस करती हूँ। 6 बजे मेरा क्लास होता है सुबह, मेरी बच्ची अभी सो रही है, तो जल्दी उठ के, या फिर अगर डांस क्लासेस भी है तो अगर वो सो गई तो उसके बाद मैं डांस क्लासेस करती हूँ, या फिर दोपहर को जब वो सोती है तो मैं डांस क्लासेस सिखाने जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम मैनेज करती हूँ उसके उठने से पहले, सो आई कैन गिव माय टाइम टू हर एज वेल एंड टू माय हॉबीज। राइट, राइट। एंड व्हेन डू यू प्रैक्टिस योर डांस? और प्रैक्टिस भी जनरली सुबह, या फिर अभी तो उसको अभी शी अंडरस्टैंड्स दैट मम्मा लव्स डांसिंग, मम्मा लव्स सिंगिंग। तो वो भी कभी कभी मेरे डांस क्लासेस में आती है, जब मैं ओके। स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। और घर पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वो भी मिरर के सामने, अगर मैं समझो चक्री का ये कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वो भी उसकी तरह से गोल घूम के बताती, मम्मा ये सही है। मैंने बोला हाँ मम्मा, बेटा सही है ये। तो उस तरह से वो भी डांस फॉलो करके ऑफ कोर्स उसके हिसाब से
फॉर्म्स तो So सही you नहीं have a होते। chotu student at home. यस, शी इज लाइक मम्मा इस तरह से सही है, कभी कभी मुझे बोलती मम्मा मेरा स्टेप देखो ऐसा फॉलो करो। मैंने बोला ओके। Okay. तो मुझे भी इंस्ट्रक्शन देती है कि मम्मा ऐसा स्टेप्स मैंने स्टेप किया है, आप मुझे फॉलो करो। ओके। तो उस तरह से, बट हाँ, शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स नाउ, तो उसको पता है कि ये मम्मा का फेवरेट चीज है, तो मम्मा के साथ वो आती है हर जगह पे। Okay, nice. और कथक के क्लासेस आपके हाउ डू दे हैपन? ओ दे अभी तो कथक मैंने जो रिस्टार्ट किया है इस साल, तो मैं नवरस एकेडमी के साथ कथक सीख रही हूँ। तो उनके स्टूडेंट्स जो ऑलमोस्ट उनके एग्जाम हुए, वो मैम को टाइम नहीं मिलता है इतना, बट डेफिनेटली मैम के स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं वो सिखा रहे हैं मुझे। तो शुरुआत तो हमेशा अ, तत्काल से होती है, फिर फुटवर्क से प्रैक्टिस शुरू होती है, एंड फुटवर्क कंप्लीट होने के बाद देन हम तोड़े लेते हैं। हर क्लास के बाद जितने तोड़े कंप्लीट हुए, सीखे हैं, वो उसको रिवाइज करते हैं। कथक के लिए बहुत जरूरी है, आई थिंक एनी क्लासिकल फॉर्म, यू नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग दैट यू लर्न बिफोर। ऐसा नहीं कि पहले साल का सीख लिया तो पहले साल का भूल जाओ, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप दैट पहले साल का पोर्शन और होमवर्क, फुटवर्क, तोड़े जो भी है वो ध्यान में रखने हैं, और वो प्रैक्टिस करनी है। हर सेशन में पहले जो भी कंप्लीट हुआ पहले वो रिपीट करना है, और फिर नया सीखना है। ऐसा नहीं कि पहला भूल जाओ और नया सीखो, ऐसा नहीं। तो वो पहले पूरा रिवाइज करते हैं हम, और फिर नया कुछ सीखते। तो इस तरह से हर सेशन होता है कथक का, तो भी एटलीस्ट एक तोड़ा करून दाखवते। ओके, 5 6 7 8 गो। Okay. So now I'd ask you a last question, that is, जो जिन्हों सीखना है, जिनको फ्लाइट वोकल हो, कथक हो, या एनी इंस्ट्रूमेंट, but they are really busy in their professional life, or in their personal life, so what would you tell them कि जैसे आप सीख रहे हैं तो कैसे सीख सकते हैं? हर एक ऑफ कोर्स सब कोई बिजी है अपने लाइफ में, बट अगर तुम्हें एक चीज सीखनी है, और डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ व्हेन यू आर रिटायरिंग विल नॉट बी देयर, बट योर हॉबीज विल बी देयर फॉर यू टू एंटरटेन। सो मेरा जो है कि आफ्टर आई एम प्रोफेशनली डन, बहुत टाइम है, बट इन 60s and old age life, hobbies would help you to pass the time, not the professional life, because there'll be no professional life. तो मेरा है कि ये सब हॉबीज जो मुझे पसंद है, वो उसमें अगर मैंने समझो कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पियानो भी शुरू किया था, बट आई थिंक आई एम गोना गो बैक एंड फोर्थ। बट हर चीज जो तुम्हें हॉबीज, जो तुम्हें बिजी रखती है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, वो करनी चाहिए at this age of when your professional life is also going, because then you'll have something to look after to, after you are like closing your laptop, after you are done with your 9 to 5 job, right? You have something to look forward to, rather than just coming home doing your regular routine. You'll have something more to look after, forward to. That's what I would say. Wonderful. I think that is a very important thing that you have said, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग अपने हॉबीज भूल जाते हैं, जी। और लगता है कि ठीक है बाद में करेंगे, बट दैट रियली डजंट हैपन। हम्म। एंड एज यू रियली राइटली पॉइंटेड आउट दैट अपने रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो बहुत पहले से ही अगर प्लान करे, और you start going in that direction, it will really help a lot. Definitely. So that is really a very good thought, and you're really acting on it. So that is really very good and very important. Yeah. Mhm. So I think the real takeaway from what you're doing is, first of all,
having a hobby and start pursuing it from right at your young age, and Yeah. also you do it with dedication, sincerity, and अगर आपको सीखना है तो आप सीखोगे बस. यस जी। तुम्हें तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम उसके लिए थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ऐसे धीरे धीरे करके टाइम ही निकाल सकते हो। हाफ एन आवर यहाँ से शुरू करते हैं, राइट? तो फिर वो जो करेक्ट. धीरे धीरे वो टाइम बढ़ा के देन यू विल हैव 1 आवर फॉर योरसेल्फ ऐसे। Yes, yes, yes. जी। Right. So, yes, Sonal ma'am, it was really wonderful talking with you. And, we really like to have students like you. और हमारे teachers जो है वो भी आपके जैसे students हो तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी। उनको भी, जैसे आपने कहा कि टीचर को भी एक encouragement मिलता है कि अभी इतने अच्छे स्टूडेंट है तो इनको अच्छा और अच्छा सिखाए. So that is also really good. So in डेफिनेट। the end, I would like to request you if you could, sing an Antara and a Mukhda of a song that you would like to. अभी कोशिश लोअर रेंज वाला सॉन्ग ही पिक करूंगी पर Sure. देखते हैं। ये एक तारा गाना फ्रॉम वेकअप सीड, कोशिश करती हूँ फिर भी। मोरे मन बतू तो पावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, पावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंदे बूंदे नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंदे बूंदे नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, दिन में बोले कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की याद रहेगी सदा, किसे है पता, किसे है पता, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों से मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। So thank you, Sonalji. Thank you very much for giving your time to us. And it is really nice to have such students like you, very dedicated. And I'm sure that you will also learn Kathak just as you learned light vocal for many years, and you'll also excel at that. नो Thank थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।